Good evening, everyone. I, Hitesh Soni, warmly welcome all the participants on today's webinar on income tax searches and surveys, laws, procedures, power, and rights. This webinar has been organized by CA Dr. Raj Char, whose continuous effort towards professional learning awareness are truly commendable. He has always been actively associated with initiatives aimed at spreading practical knowledge and professional development among tax professionals and students. Now, I kindly request him to give the opening remarks. Thank you, Hitesh. Good evening, everyone. First of all, I welcome all of you in this today webinar on income tax search and survey, law, procedure, power, and right. And today we have very experienced advocate Shri Manoj Vatsji with us. He will explain the practical things because he knows various things practically how to handle in the income tax department because he has experience for that for more than 20 years. So today he will cover legal provisions and landmark rulings, search and survey, trigger decoded, authority power and procedure, seizure, what is allowed, not allowed, taxpayer right and obligations, do's and don't during proceedings, disclosure under section 132, practical insights, post serve process and CS role, survey proceedings and key challenges. Friends, this is all practical things which we all are facing every day when the search and seizure is going to our clients. So how to handle those search and seizure and what precautions we should take care at that time. Shri Manoj Sharma ji will discuss with all of us. And my request to all of you, if you have any query, you can ask him right directly at that time, or you can post your query in the Q&A chat box. Our Mr. Hitesh will take care after the deliberation of Manoj Sharma ji. So, happy learning to all of you. Thank you, Hitesh. Carry on. It is a privilege to have us with today Advocate Manoj Sharma, a highly experienced tax litigation professional with over 25 years of experience in direct and indirect taxation. He regularly appears before CITA, ITAT, and various high courts across India and has handled numerous matters relating to search and seizure, reassessment, and tax litigation. In today's session, he will share practical insights on legal provisions, departmental powers, taxpayers' rights, and key procedure aspects relating to search and survey proceedings. Now, I warmly invite him to begin the session. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to sincerely thank Sri Dr. Gulal Chawla sir for organizing this webinar and for giving me the opportunity to interact with all the learned professionals present here today. I am really thankful to him for this opportunity. Good afternoon, all the participants. Before we begin, I have a small request to all the participants. Please listen to the session carefully. At the end of webinar, we will take questions and answers. If anyone has any query during the session, you may also type it in chat box and we will try to take it up at the end. I am not here to deliver a formal lecture on this subject. I believe I have only little practical knowledge and experience in this area. And today I will simply try to share the practical understanding with all of you. My effort will be to explain each and every practical issue relating to search, seizure, and survey, assessment proceedings, and also the role of professionals with practical examples in simple language. I would also like to share one practical feeling. Sometimes in physical seminar, we can see the faces, expression, reactions, and mood of the participants. And accordingly, the speaker understand
whether the audience is connected with the topic or not. But in webinar, most of the time we see profile photos, and sometimes it feels as if we are speaking alone and nobody is listening. So my humble request to all the participants, please on your cameras so that I can see your face. Therefore, my humble request to all the participants, and now we will discuss the issues today. देखिए, in today's era, we are using digital data, mobile phone, WhatsApp, and other instruments also. The beginning of search starts with informations. The department has lots of information. डिपार्टमेंट के पास इतना बारूद भरा हुआ है इंफॉर्मेशंस का, सभी का प्रोफाइल डिपार्टमेंट के पास है, जो भी एसएससीज रिटर्न फाइल करते हैं और जो रिटर्न फाइल भी नहीं करते, बिकॉज डिजिटलाइजेशन के टाइम पे ऑल द डिपार्टमेंट्स पास ऑन इंफॉर्मेशन विद ईच अदर. इनकम टैक्स इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है जीएसटी डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है इनकम टैक्स को, सेम ईडी, सीबीआई एंड अदर डिपार्टमेंट आल्सो. अब वो समय नहीं है, टाइम नहीं है कि इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए उनको एक लेटर फॉरवर्ड करना पड़ता था तो कंसर्न डिपार्टमेंट रिगार्डिंग दैट अनडिस्क्लोज इनकम और एनी ब्लैक मनी. On portal also they have, they can transfer the data. Now you can see on AIS portal or in 26AS there are lots of information. पहले वो इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास नहीं होती थी. अब हम खुद भी देख सकते हैं कि हमारी क्या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है. कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ इंफॉर्मेशन का हमें खुद, मुझे अपनी इंफॉर्मेशन का, मुझे अपने प्रोफाइल का इतना पता नहीं है जितना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मुझे मेरे प्रोफाइल का पता होगा. डिपार्टमेंट के पास 100 रिटर्न्स हैं, उनमें से कुछ रिटर्न्स पे काम करेगा डिपार्टमेंट और लास्ट में फाइनल करके 2-3 एसएससीज को चूज करके उनके यहाँ पे सर्च या सर्वे किया जाता है. तो आज के हम इस वेबिनार के अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच, डिपार्टमेंट की सर्च कैसे क्रिएट करता है, कैसे इनिशिएट होती है और उसकी क्या प्रोसीजरल है, वो आज हम डिस्कशन करेंगे. देखिए, जब हम छोटे थे या बाद में बड़े हो गए, स्टार्टिंग से ही जैसे स्कूल में जाते थे तो कोई बैग चेक करता था, वो भी एक सर्च थी. आज हमारा व्हाट्सएप, घर में जाते हैं व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, बच्चे चेक करते हैं या फैमिली में वाइफ चेक करती हैं, वो भी एक सर्च है. मोबाइल के अंदर इतना डाटा पड़ा होता है कि हमें खुद भी नहीं पता, और बीइंग ए प्रोफेशनल्स हम इंफॉर्मेशन देते हैं, लेते हैं. कई बार इन कैजुअल मैनर आदमी क्या करता है, अपने फ्रेंड को मैसेज किया व्हाट्सएप के थ्रू कि आई एम परचेजिंग ए प्रॉपर्टी ऑफ ₹2 crore, आउट ऑफ विच आई विल गिव 50 लाख इन कैश. उसने प्रॉपर्टी खरीदी या नहीं खरीदी बात अलग है, बस उसने व्हाट्सएप पे चैटिंग कर ली. हम अपना हिसाब बनाते हैं, छोटी छोटी पर्चियां बना के अपने पास रखते हैं, 2-2 साल 3-3 साल पर्चियां एक बैग से दूसरे बैग में, दूसरे बैग से दराज में डाल देते हैं, अलमीरा में रख देते हैं. सेम ऐसे डायरी में कुछ नोट कर लेते हैं. तो ये सब चीजें एक बारूद का काम करती हैं. जिनके यहाँ सर्च होती हैं तो उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कि इन चीजों को क्या डिक्लेयर करें. तो आज के सेमिनार के अंदर देखिए, एक मैं एक सबसे पता करना चाहता हूं कि आप लोगों ने, किन लोगों ने प्रैक्टिकली सर्च को फेस किया है.
कोई मुझे बताएगा एक बार प्लीज? Yes, sir. I have handled cases for search. वेरी गुड मैम। और कोई सर? एनी? चलो हम बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। मैं स्टोरी के साथ ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अगर पीपीटी के अकॉर्डिंग हम करते हैं तो एक बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। पीपीटी हम बाद में करेंगे। देखिए, इमेजिन कीजिए, सुबह सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आकर के कोई घंटी बजाता है घर की। 2 बार 3 बार 4 बार घंटी बजाते हैं तो एकदम बाहर कोई आएगा, वो चेक करता है कौन है। इस समय या तो दूध वाला होगा या कोई रिलेटिव आया होगा। ये तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स वाले भी पहुंच सकते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, तुरंत इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं। देखिए, पहले क्या होता था, एक ग्रुप में आते थे ये लोग, 8 लोग 10 लोग सीधा दरवाजे पे आके खड़े हो जाते थे। लेकिन कई बार क्या हुआ, उन्होंने देखा कि सामने इनकम टैक्स वाले हैं तो डोर ओपन ही नहीं करते थे। तो अब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि व्हेन यू गो टू द एसएससी प्रीमाइसिस, तो साइड में खड़े हो जाते हैं वो लोग। जैसे ही आपने दरवाजा खोला, दे विल एंटर द हाउस और प्रीमाइसिस, और जा करके फिर तुरंत अपनी टीम को भी बुला लेते हैं वहां पे। करीबन 8-10 लोगों की टीम होती है, जिसके अंदर डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, 5-6 कम से कम इंस्पेक्टर उनके साथ होते हैं। सबको गाइड करते हैं, सबको डायरेक्शन दी जाती है कि आप इस रूम में जाइए, आप इस रूम में जाइए। साथ में एक लेडीज भी होती है उनके, 1 या 2 लेडीज भी होती हैं, क्योंकि किसी के रेजिडेंस पे जाते हैं। तो सबसे पहले जो प्राइवेसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया गया है, आर्टिकल 21 में दिया गया है, वो सब प्राइवेसी को खत्म हो जाते हैं वहां पे। तो सबसे पहले जाते ही वो एसएससी के मोबाइल्स ले लेते हैं, उनके लैपटॉप, कंप्यूटर्स, अलमीरा की चाबी वगैरह सब चीजें वो कलेक्ट कर लेंगे। सबको एक जगह इकट्ठा करेंगे, डायरेक्शन देंगे कि आप इस रूम में बैठिए, आप इस रूम में बैठिए। इस तरह से डायरेक्शन दी जाती है। और फिर जो मेन जिसके यहाँ पे प्रीमाइसिस पे, सपोज कीजिए कि मनोज कुमार के यहाँ पे सर्च हुई है, तो मनोज कुमार के नाम से वारंट दिखाया जाता है कि दिस इज द वारंट अगेंस्ट यू। वो वारंट होता है फॉर्म 45। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हु विल इश्यू द फॉर्म 45? फॉर दिस फॉर्म 45 एक्ट के अंदर अथोराइज्ड ऑफिसर्स को किया गया है। There are authority in the income tax department who will authorize to the deputy director or assistant director for conducting the search. तो अथॉरिटी कौन होंगी उसमें? उसमें सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, और साथ ही प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स and assistant commissioner of income tax. They are the authority who will give the power to the officer for conducting the search. Below that rank कोई पावर उसको दे नहीं सकता। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब सर्च स्टार्ट करते हैं तो प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट के अंदर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है, डिप्टी डायरेक्टर है या असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो डायरेक्शन देते हैं इंस्पेक्टर्स को कि इनकी प्रिलिमिनरी स्टेज में एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए। हस्बैंड को एक रूम में बिठा लिया जाता है और लेडी को दूसरे रूम में बिठा लेते हैं। उनसे प्रिलिमिनरी क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट इज योर नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम,
आपके कितने चिल्ड्रन हैं, बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो लेते हैं। बच्चे कितने हैं, कौन से स्कूल में जाते हैं, कितनी फीस जाती है उनकी, आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, आपके हस्बैंड क्या बिजनेस करते हैं। और एसएससी से जिसके यहाँ सर्च है उससे पता किया जाता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ऑफिस आपका कहाँ पे है। एक चीज में मैं ऐड करता हूं, जब सर्च होती है तो सर्च नॉट ओनली इन द प्रीमाइसेस ऑफ द बिजनेस, सर्च के अंदर जो रेजिडेंस है वहां पे भी इकट्ठी सर्च की जाती है। एक टीम क्रिएट की जाती है डिपार्टमेंट की, सर्च होती है किसी यूनिट की। मान लो इन्वेस्टिगेशन के अंदर 10 यूनिट्स हैं, तो यूनिट की इन्वेस्टिगेशन की अगर छोटी सर्च है तो या 2 या 3 यूनिट ही मिलके सर्च को कंडक्ट करती हैं। अगर नेशनल लेवल पे सर्च है, सपोज कीजिए मैं एसएससी दिल्ली का हूँ, मेरे यहाँ सर्च होनी है, बट मेरा ऑफिस बॉम्बे में है, एक ऑफिस मेरा बेंगलोर में है, तो वो उस टाइम वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है, या दिल्ली के जो ऑफिसर्स हैं उनको बॉम्बे या लखनऊ या जिस भी जगह पे मेरा बिजनेस है वहां पे भेज दिया जाता है। और एनवलप के अंदर इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है कि आपको इस एड्रेस पे ये नंबर है, इस एड्रेस पे आपको जाना है। और टाइमिंग डिसाइड कर दिया जाता है कि मॉर्निंग में 7 बजे आपको वहां पे पहुंचना है। मैक्सिमम केसेस के अंदर अर्ली मॉर्निंग पे ही सर्च कंडक्ट की जाती है। सभी ऑफिसर्स को टाइमली वहां पे पहुंच जाते हैं। वो जो एनवलप दिया जाता है उस पे अथोराइज्ड जो ऑफिसर है उसकी स्टैंप लगी होती है, सील लगी होती है, ताकि उसको कोई ऑफिसर खोल ना पाए। जब ऑफिसर खोलेंगे, एक 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 डिसाइड की प्लेस डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको यहाँ जा करके ये एनवलप खोलना है। सपोज करो मुझे बताया जाता है कि चांदनी चौक में इस जगह पे जा करके आपको एनवलप करना है, तो पूरे जो 8-10 ऑफिसर्स मेरे साथ है वो मेरे साथ होंगे, उनकी उनके सामने मैं वो ओपन करूंगा। देन वी विल गो टू द एग्जैक्ट प्लेस, और सभी बॉम्बे, बेंगलोर, लखनऊ जहां जहां पे सर्च होनी है सेम टाइम पे सर्च कंडक्ट होगी। अब आ जाते हैं कि क्वेश्चंस जो स्टार्ट कर रखे हैं कि ये क्वेश्चंस होंगे। फिर उनसे पता किया जाता है कि आपका क्या नेचर ऑफ बिजनेस है, स्टॉक कहाँ पे रखते हैं आप, ये सारी चीजें बेसिक बेसिक चीजें उनसे हम डिस्कशन करते हैं। कई बार क्या होता है कि एसएससी इतना घबरा जाता है कि वो कुछ इंफॉर्मेशन उससे कुछ पूछता है तो वो बता नहीं पाता। तो उस टाइम पे प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस ये है कि उनको ये बोलना चाहिए कि हम कुछ टाइम दीजिए हमें, या मैं डिस्कशन करके या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्च आई विल गिव द रिप्लाई ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको डिपार्टमेंट फोर्स नहीं कर सकता स्टेटमेंट देने के लिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन पुरानी है, कोई ट्रांजेक्शन पुरानी कर रखी है आप लोगों ने, तो उसको बाद में भी आप उसका रिप्लाई दे सकते हैं। और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि कुछ चीजों का हमें बाद में ही रिप्लाई करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब सर्च होती है तो आदमी कोशिश करता है कि मैं वहां पे उसको कॉल करूं, वहां पे जाऊं, बट आपके फोन काम नहीं करते क्योंकि ऑल द फोन्स आर विद द डिपार्टमेंट। बट क्योंकि हम वेबिनार में हैं, मैं ज्यादा उस चीज के डिस्कशन नहीं करना चाहता। प्रैक्टिकली आप जब आपकी सर्च कंप्लीट हो जाती है तो डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ता है स्टेटमेंट के लिए या डॉक्यूमेंट्स के लिए, देन यू कैन डिस्कस ऑल द इश्यूज। अब सर्च किस सेक्शन में होती है? सर्च के लिए सेक्शन है 132। सर्च की जो स्टार्टिंग कैसे होती है, देखिए बिफोर स्टार्टिंग द सर्च द डिपार्टमेंट इशू द नोटिस अंडर सेक्शन 131 of income tax and notice under section 142(1) of the income tax, wherein the department asks the information to the assessee regarding the books of accounts and other documents, but the assessee does not provide the documents. In that case, the department start the process of search, and as per section 132(1)(b), any person to whom a summon or notice has been or might be issued, देखिए
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस इशू किया और उसका कोई रिप्लाई नहीं किया, वो तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, एसएससी ने रिप्लाई नहीं किया, बट एक्ट के अंदर लिखा है कि इट माइट बी दैट आफ्टर इशूइंग द नोटिस एसएससी विल नॉट प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जो सर्च स्टार्ट होती है वो कोई इंफॉर्मेशन बेस पे ही होती है। इंफॉर्मेशन हु विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कौन देता है? इंफॉर्मेशन ज्यादातर केसों में मैंने ये देखा है कि हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स या हमारा कोई स्टाफ होता है वही इंफॉर्मेशन देता है डिपार्टमेंट को, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास जाती है वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है कि मनोज जी के पास एक डायरी मेंटेन करते हैं, आप उस डायरी को देखिए या रजिस्टर देखिए, या मनोज जी का सारा डाटा आपको एक्सेल की उस सीट में मिलेगा। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कौन पास करेगा? हमारा कोई नियर डियर है वही पास ऑन करेगा। कुछ केसेस के अंदर इनकम टैक्स के पास अपना भी एक प्रोफाइल 360 डिग्रीज का प्रोफाइल चेक करते हैं, उसके अंदर भी जब डाटा मैच नहीं करता, सपोज करो मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है बट आई एम फाइलिंग इन आईटीआर ऑफ 6 लाख 7 लाख, मिनिमम आईटीआर फाइल कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी में 2 करोड़ की परचेज कर रहा हूँ, या मेरे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं बैलेंस शीट पी&एल के अंदर, इन दैट केस आल्सो डिपार्टमेंट सोचता है कि कुछ ना कुछ इन्होंने गड़बड़ कर रखी है इस चीजों में, ठीक है। थर्ड आता है इन इन द पोजेशन ऑफ एसेसी एनी मनी बुलियन ज्वेलरी एनी वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग such money bullion jewelry or other articles wholly or partly income or property which has not been or would not be disclosed for the purpose of the income tax act. In that case also, after getting the information, इंस्पेक्टर्स जो डिपार्टमेंट में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो आपका प्रोफाइल चेक करके सर्च के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक फॉर्म जाता है 45, जिसके बेस पे जो अथोराइज्ड ऑफिसर्स है वो अथॉरिटीज डिप्टी डायरेक्टर को या असिस्टेंट डायरेक्टर को अथोराइजेशन देते हैं सर्च करने के लिए। एक फॉर्म होता है इसमें फॉर्म 45A। 45A ये कहता है कि रिक्विजिशन ऑफ एसेट्स मींस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। सपोज कोई एसएससी गाड़ी में जा रहा है, उसकी गाड़ी में 50 लाख रुपए मिल गए, तो पुलिस उसको इन्फॉर्म करेगी डिपार्टमेंट को। तो उस केस में सेक्शन 132 की जो प्रोसीडिंग्स होगी उसमें फॉर्म 45A इशू किया जाएगा वारंट के लिए। जीएसटी डिपार्टमेंट ने कोई सर्च करी, उनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनसे बुक्स ऑफ अकाउंट वेरीफाई करने के लिए भी फॉर्म 45A का यूज किया जाता है। थर्ड फॉर्म आता है फॉर्म 45B, रिस्ट्रेंट ऑफ ऑर्डर मींस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसएससी को किसी एसेट्स, कैश, ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट आदि को हटाने या बचाने या ट्रांसफर करने से रोक देता है। जब सर्च हो रही है और डिपार्टमेंट को ये लगता है कि भाई एक रूम है, रूम के अंदर कुछ सामान रखा है, उसको डिपार्टमेंट अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, तो वो उसको लॉक कर देता है और उस पर अपनी सील लगा देता है। तो उसको रिस्ट्रेंट करने के लिए एक ऑर्डर पास होता है, वो ऑर्डर होता है फॉर्म 45। थर्ड होता है फॉर्म 45C, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रेंट। जो हमने रिस्ट्रेंट करने का ऑर्डर लगाया है उसको रिमूव करने के लिए फॉर्म 45C यूज किया जाता है। उसके बाद आता है जब सर्च कंप्लीशन पे आती है तो पंचनामा तैयार किया जाता है कि आपके यहाँ से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिले, आपकी हार्ड डिस्क, व्हाट्सएप, आपका जो व्हाट्सएप होता है, जो फोन होता है। जब डिपार्टमेंट की टीम आती है साथ में उनके साथ 4 या 5 आदमी आते हैं फोरेंसिक के, जो डिपार्टमेंट की तरफ से आपका लैपटॉप, मोबाइल, अदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबको क्लोन कर लेते हैं वो लोग। बाद में उनकी, सपोज करो मुझे लगता है कि मैंने ये डाटा डिलीट कर दिया था, सपोज करो मेरे पास कोई बैलेंस शीट आई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया, मैंने एक्सेल में उसको तैयार किया, बाद में उसको डिलीट कर दिया। ये एसएससी भी क्या करता है, कई बार अपनी प्रोविजनल देता है, कहीं प्रोजेक्टेड देता है बैलेंस शीट, और उसको बाद में डिलीट कर देता है। तो डिपार्टमेंट वो सारा जो डिलीट डाटा है वो सारा रिट्रीव कर सकता है, आपकी हार्ड डिस्क वगैरह सारी डिपार्टमेंट लेके चला जाता है।
तो जब पंचनामा तैयार करते हैं उसके अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं कि आपके यहाँ से पंचनामे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर गए। जब आपके यहाँ पे सर्च होती है तो दो पंच को बुलाया जाता है। पंच पंच या पंचायत बोलते हैं उनको। आपके जो आसपास में जो जहां पे आपके यहाँ सर्च हुई है, दो आदमी को बुलाया जाता है जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, जो इन चीजों को समझते हैं। उनको एज ए विटनेस उनके भी साइन होते हैं कि जो प्रोसीडिंग्स हुई है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स वो पूरे कंप्लीशन तक रहते हैं वहां पे। वो चेक करते हैं, अगर कोई दिक्कत है या कुछ बात होती है तो उनके जो बाद में साइन होते हैं उनकी भी सेटिस्फेक्शन ली जाती है। लास्ट आता है स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 132(4). ड्यूरिंग सर्च जो आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है वो सेक्शन 132(4) में की जाती है। तो मैंने आपसे अभी डिस्कशन की सारी चीजें कि सबसे पहले प्रीमाइसेस के अंदर एंटर करेंगे। आपका कोई लॉकर है तो लॉकर को भी उसकी भी चेक करेंगे या रिस्टेन कर देते हैं उसको। कैश, ज्वेलरी या डॉक्यूमेंट्स जो है उनको भी सब रिस्टेन किया जाता है। आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। बिजनेस में अगर बिजनेस प्रीमाइसेस में है तो जो इन्वेंट्री है आपकी इन्वेंट्री को काउंट किया जाता है। सपोज करो किसी साड़ी वाले के यहाँ पे गए तो कितनी साड़ी है, कौन सी क्या है, किसका क्या रेट है, वो सारा का सारा काम किया जाता है। और आप एक बात समझिए, सर्च का मतलब ये नहीं कि एक दिन में हो जाएगी। 2 दिन, 3 दिन, 4-4 दिन लग जाते हैं सर्च को कंप्लीशन में। एसएससी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है जिसके यहाँ पे सर्च होती है। वो सोच भी नहीं सकता कि मेरे साथ ऐसा काम हुआ, क्योंकि उसे तो लगता है कि या तो ये तो पॉलिटिशियंस के ऊपर होती है या बड़े बड़े आदमियों के ऊपर होती है सर्च तो। बट हम इतनी इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं एक दूसरे के साथ, उसकी वजह से भी हमारे यहाँ पे सर्च हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है सर्वे। सर्वे और सर्च में फर्क क्या है? देखिए, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ, कंप्लीट हम डिस्कशन आगे करेंगे इस चीज के लिए। सर्वे होता है, सर्च एक बड़ा बड़ा वाइड एरिया है सर्च का। सर्वे काफी छोटा होता है। हालांकि प्रोसेस सेम ही है सभी में। सर्वे के अंदर आपको किसी हायर अथॉरिटी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ओनली एडिशनल डायरेक्टर या एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कैन गिव द परमिशन फॉर सर्वे। कंपैरेटिवली माइल्ड एक्शन होता है एज कंपेयर टू सर्च। और सर्च और सर्वे में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो सर्वे है वो आपके सिर्फ बिजनेस प्रीमाइसेस पे हो सकता है, आपके रेजिडेंस पे सर्वे नहीं कर सकता डिपार्टमेंट। इन केस ओनली अगर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि आपके रेजिडेंस पे है या आपने रेजिडेंस पे ही अपना ऑफिस बना रखा है, इन दैट कंडीशन ओनली डिपार्टमेंट गो टू योर रेजिडेंस। सेकंड चीज क्या है, डिपार्टमेंट आपका इसमें कैश अगर कोई मिलता है तो कैश को वेरीफाई कर सकता है, कैश को सीज नहीं कर सकता। सर्वे में बिजनेस आवर के अंदर ही आपके यहाँ पे एंट्री होगी। सपोज करो मेरा बिजनेस आवर 9 to 5 है तो 9 to 5 के उसमें ही मेरे यहाँ पे एंट्री की जाएगी। एक इशू इसमें ये आता है, जब हमारे यहाँ पे सर्वे होता है तो हमारी स्टेटमेंट ऑन ओथ होती है। बट इन द केस ऑफ सर्वे जो स्टेटमेंट होगी ऑन ओथ नहीं होगी, और उसकी लीगल वैल्यू उतनी नहीं है जितनी सर्च के केसेस में होती है। सर्वे के केस में भी रिस्ट्रेंट ऑर्डर लगता है और सर्वे के केस में भी रिस्ट्रेंट ऑर्डर लगता है। अब हम डिस्कशन करेंगे। मैं हितेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमने पीपीटी ले रखी है एक बार उसके अकॉर्डिंग भी हम डिस्कशन कर लें। कुछ छोटी चीजें, एक दो चीजें जब हम डिस्कशन करेंगे बीच बीच में आएंगी तब भी मैं बता दूंगा कि आपकी प्रॉपर्टी या आपकी जो ज्वेलरी है कितने तक डिपार्टमेंट सीज कर सकता है। वो सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे कि अब हम कब ड्यूरिंग सर्वे या आफ्टर सर्वे अपनी जो स्टेटमेंट ली है रिट्रैक्शन कर सकते हैं और क्या सपोर्टिंग एविडेंस उसमें हम यूज कर सकते हैं। देखिए मेरी पीपीटी में ये फर्स्ट पेज तो जो हमारा डिस्कशन है वो है। हितेश जी नेक्स्ट कीजिए। एक्चुअली मेरा लैपटॉप का वॉइस नहीं आ रही थी इसलिए मोबाइल से ही मैं कर पा रहा हूं। तो हितेश जी, यस, ये डिस्क्लेमर है। नेक्स्ट, ये हमारे की हाइलाइट्स हैं।
अब सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन सर्वे एंड सर्च। जैसा मैंने आपको बताया, सर्वे इज मेंट टू डिस्कवर, स्क्रूटनाइज और टू इंस्पेक्ट समथिंग। सर्च मीन्स थ्रू इंस्पेक्शन of the building, place, vehicle, vessel, aircraft, and of the person. When a team of income tax official is deputed to visit place for one spot verification, it could either be a search and seizure operation or survey। कि भाई सर्वे से पहले आपकी पूरी फाइल को स्क्रूटनाइज किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, before without information and reason to believe the department cannot issue authorization letter to the DDIT or ADIT or who will conduct the search in the premises or in the residence of the SSC। नेक्स्ट करना हितेश जी, नेक्स्ट करना भैया, और नेक्स्ट। यस, देखिए ये मैंने एक टेबल फॉर्म में बनाया है। सर्च एंड सीजर में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट है प्रीमाइसिस। सर्च के केस में एसएससी की प्रीमाइसिस रेजिडेंस, शॉप, ऑफिस एंड अदर प्लेसेस पे भी जा सकते हैं, बट इन सर्वे केसेस ओनली सर्च such places where business or profession is carried on, that is shop, offices, factories, godown, etc. can be entered. In residence they cannot go। second, residential premises, सर्च केसेस में रेजिडेंस में जा सकते हैं, सर्वे में नहीं जा सकते। थर्ड, एंट्री, बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर एंट्री कर सकते हैं, बट इसमें कोई टाइमिंग नहीं है कि सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग भी आ सकते हैं, किसी भी आवर के किसी भी टाइम आपके यहाँ पे एंट्री कर सकता है डिपार्टमेंट, बट इन सर्वे केसेस दे कैन एंटर ओनली इन बिजनेस आवर्स। नेक्स्ट, वैल्यूएबल सीजर। सर्च के केसेस में कैश, ज्वेलरी, वैल्यूएबल जो भी फाउंड है, अनअकाउंटेड, अनडिस्क्लोज्ड है, उनको वो सीज कर सकते हैं। सेम cash and other valuable like gold, jewelry, etc. can be counted inventories but cannot be seized। जो सर्वे है, सर्वे के केस में जो इन्वेंट्रीज है उनको सीज नहीं कर सकते, बट सीजर के, सर्च एंड सीजर में वो उसको रिस्ट्रेंट करके सीज कर सकते हैं कि ताकि एसएससी उनको सेल ना कर पाए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट को इंपाउंड किया जा सकता है सर्च के केसेस में, and in survey cases books of account and documents can be impounded in a survey but cannot be retained by the department beyond 10 days। 10 दिन से ज्यादा का वो नहीं रख सकते। सर्च एंड सीजर्स के केस में भी डिपार्टमेंट को अप्रूवल लेनी पड़ती है मोर देन 60 डेज। अगर हमें जो डॉक्यूमेंट सीज करने हैं तो हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर के उनको रिटेंशन ऑफ बुक्स किया जा सकता है। स्टेटमेंट, सर्च एंड सीजर के केस में स्टेटमेंट ऑन ओथ ली जाती है, जिसको बाद में, जिसकी एविडेंसरी वैल्यू है, बट इन सर्वे केसेस ऑन ओथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की जाती और जिसकी एविडेंसरी वैल्यू काफी कम मानी जाती है। ब्रेक ओपन एंड लॉक और डोर। इन द केस ऑफ सर्च डिपार्टमेंट आपका कोई भी लॉकर, कोई भी अलमीरा, इवन आपने कई बार देखा भी होगा फिल्मों में भी कि सोफा को भी कर दिया, दीवारें तोड़ दी, ये सारा आपने अभी अभी कुछ टाइम पहले ही फिल्म भी आई थी अजय देवगन जी की, जिसमें देखा होगा कि वो काफी सारी चीजें तोड़ देते हैं। हेलो जी सर। सर, क्या ये जो आप पीपीटी दिखा रहे हैं ये हम लोगों को मिल सकती है सर? हाँ सर, ये मिलेगी आप लोगों को सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके ओके सो सर, नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू सर। थैंक यू सर। सर जो अलमीरा है वो ब्रेक कर सकते हैं। हितेश जी आप शायद ज्यादा आगे आ गए हैं, और चलिए पीछे पेज नंबर 6 पे आइए, 6 पे पॉइंट नंबर 7। तो सर्च के केसेस में वो आपके साथ, आप टू फाइंड आउट अनडिस्क्लोज के लिए वो कुछ भी आपका ब्रेक कर सकते हैं, अलमीरा, लॉकर, कुछ भी तोड़ सकते हैं। या तो आप उनको की प्रोवाइड कराइए, नहीं तो वो उनके पास पावर है, आपका मोबाइल का डाटा टेकअप करने की पावर है, लैपटॉप का डाटा लेने की पावर है। अगर आप उनको आईडी पासवर्ड नहीं देते या ईमेल का आईडी पासवर्ड नहीं देंगे तो उनके पास जो
इतने एक्सपर्ट लोग हैं, वो सारा का सारा डाटा रिकवर कर लेते हैं। आपका जीमेल का अगर पासवर्ड देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो तब भी वो आपका डाटा रिकवर कर लेंगे। उनको आपकी हर एक्टिविटी का पता है, आप कहाँ पे गए हैं लास्ट वीक तक की, सपोज करो मेरे मेरे यहाँ पे डिपार्टमेंट ने सर्च करनी है, तो वो सारा फाइंड आउट करेंगे, मनोज कहाँ पे गया, किससे मिला, क्या क्या सुबह से शाम तक क्या क्या उसका रूटीन है, ये सारी चीजें वो रिकॉर्ड करते हैं। आपकी प्रॉपर रैकी की जाती है। ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट ऑफिस के अंदर बैठ के ही सारा काम करता है। रैकी की जाती है, आप किन लोगों से मिल रहे हैं। कुछ कंडीशंस के अंदर पॉलिटिशियन अगर कुछ ऐसा बड़ा लेवल है तो वो आपकी रिकॉर्डिंग भी होती है, बहुत सारी चीजें जो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो इन द केस ऑफ सर्वे, डिपार्टमेंट आपका ऑफिस को ब्रेकअप नहीं कर सकता। जब तक आप अपने ऑफिस पे या प्रीमाइसिस पे जहां पे भी सर्वे हो रहा है, जब तक आप वहां पे नहीं होगे, आपके यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आफ्टर कंप्लीशन, आफ्टर द सर्च असेसमेंट फॉर द प्रोसीडिंग 6 years गेट कंपल्सरी रीओपन्ड। देखिए, सर्च के केसेस के अंदर आपके पिछले 6 साल तक के केस खुल जाते हैं। काफी पुरानी बात है, पहले 2021 से पहले सेक्शन 153A एंड 153C एप्लीकेबल होता था इन द केस ऑफ सर्च, जिसमें 6 साल और 10 साल तक का केस रीओपन हो जाता था। आफ्टर 1 अप्रैल 2021 न्यू एक्ट में अमेंडमेंट आई, सेक्शन 148 के अंदर सर्च के जितने केस थे वो रीओपन होते थे। उसमें भी टाइम पीरियड पहले 6 साल 10 साल रखा गया, उसके बाद 3 साल 5 साल रखा गया। उसके अंदर भी कैटेगरी डाली गई, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे कि अगर बिलो 50 lakhs है तो 3 years, बिलो 50 lakhs है तो 5 years। बट इन द केस ऑफ सर्वे, जिस ईयर का आपका इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स मिला है डिपार्टमेंट को, उसी साल का केस रीओपन किया जाता है। नेक्स्ट पेज हितेश जी, आपको दिखाई दे रहा है ना सभी को? नेक्स्ट है सर्कमस्टांसेस एंड लीगल बेसिस फॉर इनिशिएटिंग सर्च। जो मैं अभी आपसे डिस्कशन कर रहा था कि सर्च से पहले क्या क्या किया जाता है। Search and seizure is obviously a serious invasion on the rights of citizens. Therefore, the IT department is required to be cautious while ordering and initiating such proceedings. कि हमारे जो आर्टिकल 21 के अंदर हमारे राइट्स दिए गए हैं, वो सब का वो वहां पे सब कानून खत्म हो जाता है। कई बार पुराने टाइम में तो काफी हरास किया जाता था, एसएससीज को प्रेशराइज किया जाता था अमाउंट सरेंडर करने के लिए कि आप अमाउंट सरेंडर करिए। बट उसके बाद सीबीडीटी गाइडलाइंस आई कि आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते कोई सरेंडर वैल्यू करने के लिए। तो इसमें कुछ कोर्ट्स के डिसीजन डाले हुए हैं मैंने, जिसमें डॉक्टर नंदलाल वर्सेस सीआईटी 1988, 170 आईटीआर 592, प्राइवेसी इज ए वेरी वैल्यूएबल राइट of a civilized society and violation thereof is not permissible except by authority of law। इसमें अदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हनन होता है वो आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 भी है। एक केस इसमें डॉक्टर ओसवाल का है। ये पीपीटी इसीलिए दी गई है ताकि इसमें पूरा ना, अगर मैं पूरी को डिस्कशन करूंगा तो जो हमारा टाइमिंग दिया गया है चावला सर ने, उसमें ये सारी चीजें मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। मैं प्रैक्टिकल चीजें आपके सामने रखूंगा, तो इसमें थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ आपको। डॉक्टर ओसवाल एंथोनी वर्सेस इनकम टैक्स में भी हमारे जो राइट्स हैं आर्टिकल के अंदर दिए गए हैं, वो किसी भी कंडीशंस के अंदर उनका हनन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट केस है इसमें परेश नाथाल चौहान वर्सेस गुजरात ऑफ इंडिया। एक केस है पवन कुमार गोयल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन सभी के अंदर आपके जो राइट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। हितेश जी नेक्स्ट करना। अब नेक्स्ट है इसमें हु आर द अथॉरिटीज एम्पावर्ड टू इशू ए वारंट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर सर्च एंड सीजर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले
कि as per section 132 a warrant of authorization for conducting search and seizure can be issued by authorities such as Principal Director of Income Tax Investigation, Director General of Income Tax Investigation, Principal Director of Investigation, Director, Principal, Chief Commissioner of Income Tax, Chief Commissioner of and Commissioner of Income Tax. These are the authorities can issue the warrant only when they have reason to believe. देखिए सर्च के लिए इंफॉर्मेशन एंड रीजन टू बिलीव इज द सोल. अगर किसी के पास रीजन टू बिलीव नहीं है तो वो सर्च इलीगल मानी जाएगी. Based on credible information that the assessee is in possession of undisclosed income, assets, books of account, cash, bullion, jewelry, or documents which have not been disclosed for tax purposes. The authorized officer who execute the search may include officers such as Deputy Director, Assistant Commissioner, Income Tax Officers और Inspectors. जब सर्च होती है तो उसमें जो ऑफिसर्स मैंने बताया उसमें डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और इंस्पेक्टर्स और इनकम टैक्स ऑफिसर्स जाकर के सर्च को कंडक्ट करते हैं. These officers have power to enter premises, search lockers, examine books, digital data, seize undisclosed assets and record statement under section 132(4). 132(4) के अंदर ही हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है. In comparison, generally lower level authority with approval of search warrant like section 1 जो 45 जो मैंने आपसे डिस्कशन किया था उनकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है. नेक्स्ट करना सर हितेश जी. नेक्स्ट हितेश जी नेक्स्ट करना प्लीज. अब जो उसमें वारंट इशू किया जाता है उसके लिए फॉर्म 45 सर पेज नंबर 9 पे कीजिए. यस फॉर्म 45 मैंने आपको बताया वारंट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर सर्च एंड सीज अंडर सेक्शन 132 कि 132 की वारंट के लिए आपके पास कौन सा फॉर्म जब आपके यहाँ पे एंट्री करता है प्रीमाइसेस के अंदर ऑफिसर तो वो आपको एक वारंट दिखाता है कि आपके यहाँ सर्च करने के लिए हमारे पास वारंट है और हम आपके यहाँ पे सर्च करेंगे. वो आपको वारंट दिखाएगा. आपके आपके सभी आप जिसके नाम से वारंट इशू है वारंट कैन बी इशूड ज्वाइंटली और इंडिविजुअली. वो आपके साइन लेगा उस वारंट के ऊपर बट वो आपको वारंट प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको कॉपी नहीं देगा. वो बस आपके साइन कराएगा, आपको दिखाएगा कि वी हैव वारंट फॉर कंडक्टिंग द सर्च ऑन योर प्रीमाइसेस. वो इश्यूज द फॉर्म. अभी हमने बताया कि कौन कौन ऑथराइजेशन इशू कर सकता है. दिस इज एक्सप्लेनेशन उसमें. दिस इज द मेन सर्च वारंट issued by senior income tax authorities allowing officer to conduct search at the premises of the assessee. उसके बाद मैंने फॉर्म 45 ए भी बताया है आपको. आप ये सारी चीजें आप देख सकते हैं 45 ए में जो मैंने अभी पहले डिस्कशन किया था. रिपीटेशन करने से टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा. अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ. फॉर्म 45 बी 45 सी और लास्ट में पंचनामा होता है आपका जिसके अंदर ये डाला जाता है कंटेन्स कंप्लीट डिटेल्स ऑफ सर्च प्रोसीडिंग स्टेटमेंट सीजर ऑफ कैश ज्वेलरी बुक्स डिजिटल डाटा एंड इन्वेंटरी प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग सर्च. ये पंचनामा की कॉपी आपको दी जाती है कि आपके यहाँ से वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं. और लास्ट में होता है आपकी स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करी है वो उस पर आपके ऑन ऑथ साइन कराए जाते हैं. लास्ट में उस पर लिखा जाता है कि आपके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया, विदाउट स्ट्रेस आपके साथ पूरा कोऑपरेट किया डिपार्टमेंट ने. ये सारी चीजें आपको विद हैंड रिटन लिखी जाती है. डिपार्टमेंट में जब जो सर्च करते हैं जब स्टेटमेंट इंस्पेक्टर रिकॉर्ड करता है आपकी तो वो स्टेटमेंट आपको जो लैंग्वेज कन्विंस है जिस लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके अंदर ही आप अपनी स्टेटमेंट राइट डाउन करा सकते हैं. जो 132(4) में स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट इज एविडेंस इन असेसमेंट प्रोसीडिंग्स. जब आपकी असेसमेंट होगी सेंटर सर्कल में
क्योंकि जब आपका सर्च के बाद एक अप्रेजल रिपोर्ट बनती है, अप्रेजल रिपोर्ट के बाद आपका सारा डाटा, सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो बुक्स डिपार्टमेंट ने सीज करी है, वो सारी सेंट्रलाइज की जाती हैं, और वो जो सेंट्रलाइज में आपकी असेसमेंट होगी, वहां पे आपके असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर जो आपने स्टेटमेंट दी है वो आपसे काउंटर की जाती है। नेक्स्ट है सर्कमस्टांसेस इन विच ऑथराइजेशन फॉर सर्च एंड सीजर कैन बी इश्यूड। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि क्या कंडीशंस होती हैं जिसके लिए हमारे यहाँ पे सर्च डिपार्टमेंट कर सकता है। सर्च से पहले है उसमें 131 का अगर डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस दिया है, या 142(1) का नोटिस डिपार्टमेंट ने आपको दिया है और आपने उसकी कंप्लायंस नहीं करी है, तो इन दैट केस डिपार्टमेंट को ये लगता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आप कंसीलमेंट कर रहे हैं, अनडिस्क्लोज इनकम कोई आपके पास है वो आप हमारे को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो टू फाइंड आउट दैट अनडिस्क्लोज इनकम, द डिपार्टमेंट कैन कंडक्ट सर्च। Any person to whom someone under section 131 of the income tax and notice under section 142(1) of this act was issued to produce or caused to be produced any books of account or other document has omitted or failed to produce, caused to produce such books of account or other documents as required by such summon। जो नोटिस इशू किए आपने अगर रिप्लाई नहीं दिया एसएससी को, इन दैट कंडीशन डिपार्टमेंट आपके यहाँ पे सर्च कर सकता है। सेकंड कंडीशन है कि डिपार्टमेंट को ये लगता है कि अगर डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करेगा 131 या 142(1) का, इन दैट कंडीशन आल्सो यू विल नॉट प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट टू द डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन टैक्स इवेजन पेटिशन से डिपार्टमेंट के पास आई है, या किसी रिलेटिव ने दी है, या कहीं से भी जो इन्फॉर्मेशन आई है, उसको पता है कि डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन एसएससी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इन दैट कंडीशन आल्सो department can search any person to whom someone notice as aforesaid has been or might be issued will not or would not produce, caused to be produced any stock, any books of account or other documents। देखिए, इसमें भी मैं जो बता रहा हूं आपको कि अगर डिपार्टमेंट को लग रहा है कि नहीं प्रोवाइड करेंगे तो तब भी सर्च कर। सी में आ जाइए, एनी पर्सन इज ए पोजेशन ऑफ एनी मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग, such money, bullion, jewelry or other valuable article or thing represents either wholly or partly income or property which has not been or would not be disclosed for the purpose of the income tax act। कि ऐसी कोई चीज जो डिपार्टमेंट को आप नहीं बताएंगे, इन दैट कंडीशन डिपार्टमेंट कैन कंडक्ट सर्च। सर्च वारंट, कुछ क्वेश्चंस मैंने क्रिएट बनाए थे, वो मैं क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिकल आप थोड़ा जल्दी और इजीली समझ पाएंगे, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। सर्च वारंट्स कैन नॉट बी इशूड इनडिस्क्रिमिनेटली। The power of authorities, the power of authorizing a search has to be exercised in honest manner। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ दुश्मनी है उसके बेस पे ही आप सर्च कर देते हैं। आपका जो डिसीजन है फॉर कंडक्टिंग सर्च विवेकपूर्ण होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इनडिस्क्रिमिनेटली नहीं होना चाहिए मैनर्स में। Honest manner and search warrants cannot be indiscriminately issued as a matter of policy। On a reading of section 132 of the Income Tax Act with section 165 of the Code of Criminal Procedure, it indicates that section 132(1) is intended circumstances to person of a particular bent of mind who are neither not expected to cooperate with the authorities by production of the relevant books or who are in possession of undisclosed money। तो ये आप इसको थोड़ा सा, जब आपके पास पीपीटी आ जाएगी तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सर नेक्स्ट कीजिए, पेज नंबर 12 पे आइए सर, 12 पे। Circumstances must exist on the date of issue of warrant। देखिए, जब डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे सर्च करनी है, जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है वो इंफॉर्मेशन उसी टाइम एप्लीकेबल होनी चाहिए जिस टाइम डिपार्टमेंट ने सर्च करनी है। इट हैज बीन हेल्ड बाय केरला हाई कोर्ट इन द केस ऑफ कल्पका बाजार that such circumstances should exist on the date of issue of the authorization or search warrant। Similarly, Allahabad High Court in the case of Dr. Anita Sahai, in that case also held that before authorization under section 132(1), the CIT or director in investigation must be in possession of information giving him reason to believe
देखिए, जो मेन रीजन टू बिलीव होना चाहिए, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट के पास कि कोई अनडिस्क्लोज ज्वेलरी है, बुलियन है, मनी है, वो है। इन दैट केस डिपार्टमेंट कैन सर्च। नेक्स्ट, mere possession of assets is not enough. The belief must be that the asset are wholly or partly undisclosed. डिपार्टमेंट के पास खाली इंफॉर्मेशन है कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, या मेरे पास इतना कैश पड़ा हुआ है, इतनी ज्वेलरी है, ये खाली इंफॉर्मेशन होना ही नहीं, डिपार्टमेंट के पास प्रॉपर रैकी करनी चाहिए डिपार्टमेंट को। उसको उसको एक्चुअल उसके पास सारा डाटा होना चाहिए कि बिफोर सर्च वो किसी की, सपोज करो मेरे खिलाफ किसने टैक्स इवेजन पिटीशन फाइल करी है और उसमें बोल दिया कि मनोज के पास तो ये प्रॉपर्टी है, इतनी ज्वेलरी है, इतना कैश पड़ा हुआ है, तो डिपार्टमेंट को पहले उसको वेरीफाई करना है, उसके बाद ही डिपार्टमेंट को सर्च करनी चाहिए। ये इस केस लॉ में बताया गया है। नेक्स्ट है डिसाइडेड बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट इन द केस ऑफ गंगा प्रसाद that the mere fact that the warrant of authorization has been issued does not amount to having reason to believe that the person against whom it was issued was in possession of undisclosed income. प्रॉपर डिपार्टमेंट को इंक्वायरी करके ही उसके यहाँ पे सर्च करनी चाहिए। नेक्स्ट, हितेश जी नेक्स्ट करना, पेज नंबर 14। सर ये मैं अभी आपसे डिस्कशन ही किया है कि 132 कब इनिशिएट हो सकता है। 131 इशू किया डिपार्टमेंट ने, या 142 किया, उसका रिस्पांस नहीं दिया, या डिपार्टमेंट को लग रहा है कि आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये 132 की इनिशिएशन के रिगार्डिंग ही लिखा गया है। नेक्स्ट करना सर। क्वेश्चन है कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट डू नॉट प्रिक्लूड सर्च। कि अगर सपोज करो किसी ने रिटर्न फाइल कर दी है और उसकी स्क्रूटनी भी हुई है, असेसमेंट भी हुई है, क्या उस केस में भी सर्च हो सकती है? बताइए सर, कोई बता सकता है? Yes, sir. If the returns have been filed, it doesn't mean that the search will not happen. Because here, when the search happens, it is deemed that they are having the information. So, return filing on this thing doesn't affect or preclude the search. वेरी गुड मैम। देखिए, खाली रिटर्न फाइल करने से या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट से ये नहीं है कि डिपार्टमेंट आपके यहाँ पे सर्च नहीं कर सकता। आपने कई बार देखा भी होगा कि 148 भी हो जाता है एसएससीज का विदाउट सर्च भी, उसके यहाँ पे असेसमेंट उसकी स्क्रूटनी में केस हुआ फिर भी 148 हो जाता है। तो डिपार्टमेंट ये कहता है कि इफ देर इज एनी इनक्रीमेटिंग मटेरियल और अनडिस्क्लोज इनकम विच द एसएससी हैज नॉट डिक्लेयर्ड during the course of assessment proceedings or while filing the returns, in that case also the department can conduct search. But अगर कोई ऑलरेडी आपने ड्यूरिंग असेसमेंट्स आपने वो डिक्लेयर कर दिया है और डिपार्टमेंट को ये लगता है कि भाई उसने कंप्लीट डिक्लेयर कर दिया फिर भी सर्च करता है, तो वो सर्च इनवैलिड होगी। तो उसके लिए पॉइंट ये इशू यही है कि डिपार्टमेंट ने जो स्क्रूटनी करी है, असेसमेंट करी है, उसके अंदर उस पॉइंट को कवर नहीं किया हो और वो कोई अनडिस्क्लोज इनकम उसने एट द टाइम ऑफ असेसमेंट अनडिस्क्लोज नहीं रही हो कोई भी, इन दैट केस डिपार्टमेंट कैन इशू 148। नेक्स्ट, डीमिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 69A कैन नॉट बी इशूड एट द स्टेज ऑफ फॉर्मिंग बिलीफ। द डिटरमाइन, देखिए डीमिंग प्रोविजन क्या है कि डिपार्टमेंट को लगता है कि कोई किसी के यहाँ पे कोई सर्च करी, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले या कोई चीज मिलता है, तो उसके यहाँ पे डीमिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल होता है। द डीमिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 69A confer a power on the assessing officer for making addition. However, such deeming provisions cannot be availed of at the time of issuing the warrant of authorization. The two stages of issuing authorization and assessment are different. If section 69A is invoked at the stage of issuing authorization, it would result in negation of safeguard provided by the expression reason to believe. In this view, warrant of authorization could not be held to be valid by virtue of section 69A.
ये गंगा प्रसाद जी का जो केस है उसके अंदर इसको डिस्कशन किया गया था। पावर ऑफ सर्च टू बी एक्सरसाइज बोनाफाइड। देखिए, जो सर्च की पावर है वो बोनाफाइडली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन आई और खाली बगैर उसकी रैकी किए, बगैर उसको प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन किए डिपार्टमेंट उस पर सर्च कर दे। ये बोनाफाइड के लिए इसमें डाला गया है। आप जब पीपीटी मिलेगी सर पढ़ लेना आप। नेक्स्ट करना सर, हितेश जी। Whether search warrant can be issued in the name of minor, legal heir of deceased person or a non-resident living in India or an employee of the person searched। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर है यस। माइनर के केस में या लीगल हेयर के केस में भी डिपार्टमेंट सर्च कंडक्ट कर सकता है। सपोज कीजिए कि मेरा कोई एम्प्लॉय है, वो एनआरआई है बट मेरे यहाँ पे नौकरी कर रहा है या कंपनी में किसी पोस्ट पे है, तो उसके यहाँ पे भी सर्च डिपार्टमेंट कर सकता है। नेक्स्ट, अब सबसे मेन इश्यू आता है कि क्या राइट्स है। राइट्स ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम द सर्च इज कंडक्टेड। जिसके यहाँ पे सर्च हो रही है उसके क्या राइट्स हैं, गवर्नमेंट ने क्या राइट्स प्रोवाइड कराए हैं। तो सबसे पहला है टू सी द वारंट। जिसके नाम से वारंट इशू किया है ऑफिसर्स, अथोराइज्ड ऑफिसर्स को, तो वो उनको चेक करने का वारंट को पूरा राइट है। सेकेंड है टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ ईच मेंबर ऑफ सर्च पार्टी। जो यहाँ पे आपके यहाँ पे जो सर्च की पार्टी आई है, 8-10 लोग जो भी आए हैं, डिपार्टमेंट कैन आस्क, सॉरी, एसएससी कैन आस्क फॉर द आइडेंटिटी ऑफ दैट ऑल द पर्संस। देखिए, कोई भी आपके यहाँ पे आता है, आपने एक फिल्म देखी थी जिसके अंदर फेक सर्च होती थी, आई थिंक उसमें अक्षय कुमार जी की थी, लेकिन उसमें तो उसका जो आइडेंटिटी कार्ड था वो भी उसने ओरिजिनल शो कर रखा था। तो कुछ अगर देखिए, वैसे तो एसएससी इतना डरा होता है कि वो कुछ बात ही नहीं कर पाता, वो आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं मांग पाता सर पिक्चर का नाम पूरी की। था स्पेशल 26। हाँ हाँ, यस राइट सर, स्पेशल 26 फिल्म में जो था। तो एसएससी चाहे तो डिपार्टमेंट की जो आइडेंटिटी है वो उनकी चेक कर सकता है। अगर फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं है तो डिपार्टमेंट के जो हायर अथॉरिटीज हैं, या डायरी है या कहीं से फोन नंबर लेकर के वो हायर अथॉरिटीज से बात भी कर सकता है उसके लिए। बट इसके लिए देखो, काफी बड़ा दिल चाहिए, बड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि जिनके यहाँ पे सर्च होती है, मैंने तो देखा है उन लोगों को कि वो बस हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट, टू हैव एटलीस्ट 2 रिस्पेक्टेबल एंड इंडिपेंडेंट रेजिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी एज विटनेस। जो मैंने बताया कि मिनिमम 2 पंचाज जो है उनको होना वहां पे जरूरी है ड्यूरिंग द सर्च प्रोसीडिंग्स। फोर्थ है टू हैव पर्सनल सर्च ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्टी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सर्च एंड आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द सर्च। जब सर्च करके आपके यहाँ से जाते हैं तो आप उनकी पूरी तलाशी ले सकते हैं कि वो कोई ऐसी आइटम या कोई ऐसी चीज लेकर तो नहीं अपने साथ जा रहे हैं। टू नेक्स्ट है टू इंसिस्ट on a personal search of a female by another female only with strict regard। लेडीज लेडीज की ही चेकिंग करेंगी, ये आपका अधिकार है, ले सकते हैं। टू हैव ए कॉपी ऑफ द पंच टुगेदर। जो पंचनामा है उसकी कॉपी आपको डिपार्टमेंट देता है, बट जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है डिपार्टमेंट आपकी 132(4) की, उसकी कॉपी आपको डिपार्टमेंट कभी भी नहीं देगा। देखिए, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मेरे यहाँ पे सर्च तो हो रही है, मेरे सारी प्राइवेसी, मेरे सारे राइट्स का डिपार्टमेंट उल्लंघन करता है, बट मेरे यहाँ सर्च क्यों हो रही है, ये रीजन कभी भी डिपार्टमेंट नहीं बताएगा आपको। इवन सीआईटी अपील को नहीं बताता, ना ट्रिब्यूनल में जाता है। ओनली हाई कोर्ट में अगर आप रिट फाइल करते हैं, देन इन दैट केस डिपार्टमेंट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनको भी एनवेलप के अंदर रीजन ऑफ सर्च शो करता है। और कई बार तो उस समय भी आपको पता नहीं चलता कि आपके यहाँ पे इतनी बड़ी सर्च हुई है, उसके पीछे रीजन क्या है। आपने जो फिल्म देखी थी रेड, उसमें देखा था कि शायद कोई उनकी वाइफ थी या लेडी थी जिन्होंने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। अगर कोई लेडी आपस में हस्बैंड वाइफ की कोई डाइवर्स हो गया या कुछ भी फैमिलीज में, तो तब भी वो इंफॉर्मेशन का पार्ट होती है। नेक्स्ट है वुमेन हैविंग द ऑक्यूपेंसी। ये सारे जो आपके राइट्स हैं वो बताए गए हैं पॉइंट 9 में। इन केस अगर किसी को कोई बीमारी है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो इन दैट केस वो आप डॉक्टर्स को भी अपने उस वहां पे बुला सकते हैं। टू हैव हिज चिल्ड्रन परमिटेड टू गो टू स्कूल।
बच्चों को स्कूल में भेजा जा सकता है, उनका बैग चेक करके डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो आपका चेक करके बच्चों को स्कूल के लिए अलाउ कर देते हैं। टू इंस्पेक्ट द सील्स प्लेस्ड ऑन वेरियस in course of search and subsequently when reopened by the continuation of the search। जो भी जहां पे भी डिपार्टमेंट ने रिस्ट्रेन किया है, जो सील लगाई है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप प्रॉपर उनको देख सकते हैं। टू हैव द फैसिलिटीज ऑफ हैविंग मील्स, खाना खाना है या जो आपको सोने का टाइम है, जो आपको पूजा करने का टाइम है, वर्शिप का जो टाइम है, वो सब आपको प्रॉपर दिया जाएगा। टू हैव कॉपी ऑफ स्टेटमेंट बिफोर इट इज यूज्ड अगेंस्ट हिम इन असेसमेंट और प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स। देखिए कॉपी आपको मिलेगी नहीं, आप कितना ही मांगते रहें। टू हैव इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो आपकी सीज करी हैं उनकी इंस्पेक्शन आप लोग कर सकते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैव नो पावर ऑफ अरेस्ट। सबसे बड़ी बात क्या है, इनकम टैक्स के अंदर सर्च में डिपार्टमेंट को पावर नहीं है किसी को अरेस्ट करने की। देखिए जब वेबिनार है, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि डिपार्टमेंट के जब ऑफिसर्स आते हैं तो वो इतना प्रेशराइज कर देते हैं एसएससी को, आपके यहाँ से कुछ मिलेगा, इनकम टैक्स के साथ साथ वो कहेंगे ब्लैक मनी भी है आपकी, आपका तो पीएमएलए में भी होगा, आपका तो वहां पे भी होगा। इतना स्ट्रेस क्रिएट कर देंगे और कहेंगे कि फिर बाद में आप कुछ ना कुछ अमाउंट सरेंडर कीजिए। तो मेरी पर्सनल राय है ये है कि कभी भी सरेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सरेंडर किया तो समझो आप मारे गए। आप उसको बाद में जो अमाउंट सरेंडर हो गया तो उसको बाद में आप अपनी इनकम कैसे दिखाएंगे, वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है टू ऑब्जेक्ट बाय वे ऑफ फाइलिंग द पिटीशन टू द अप्रूवल गिवन बाय द। सर देखिए सर आप। excuse me, सर सर जी अगर सर। वो कहते हैं कुछ एडवांस टैक्स के चेक दे दो। सर नहीं देने चाहिए कुछ भी। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो 2 दिन 3 दिन वो आपके पास आए हैं तो आप ये कहिए जी मुझे अपने सीए से बात करनी है, मुझे अपने फैमिली मेंबर से बात करनी है, मुझे रिलेटिव, जो भी आप कुछ ना कुछ बहाना लगाइए, कुछ भी कीजिए, आपको करना नहीं चाहिए सर वो। सर सर क्योंकि मैं देखिए आपकी आप सर सर। मैं एक मिनट सर, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन उस समय उस बंदे जी की आप मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। जो बंदा उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है और वो कह रहा है चल एक काम कर, तू 25-50 लाख का चेक दे दे एडवांस टैक्स का, खत्म कर। जी जी। तो अब सर मैं क्या करे? सर मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ उनकी जो पोजीशन, क्योंकि मैं तो 8-10 सर्चेज के अंदर ज्वाइन करके देख चुका हूँ, मुझे पता है सर उनकी क्या कंडीशन होती है। बट आप क्या कर सकते हैं, देखिए अपनी जो आपने स्टेटमेंट दी गई है वो बाद में उस स्टेटमेंट को रिट्रीट कर सकते हैं जितना जल्दी हो। क्योंकि देखो सर आपने अगर कुछ सरेंडर किया है, आपके ऊपर उन्होंने लगाना 115 बी। 115 बी में जो टैक्स बनता है आई थिंक 78 के आसपास वो टैक्स लग जाएगा। फिर उन्होंने पेनल्टी भी लगानी है, काम उन्होंने सारे करने हैं। तो ऐसा क्यों ना करें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है वेबिनार में मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि सर्च करने के बाद तो सपोज करो सर्च के अंदर कोई आपका नॉन बंदा भी है, लेकिन वो आपको उस समय आपके लिए अननोन हो जाएगा, वो आपसे कोई बात ही नहीं कर सकता। क्योंकि सर्च पूरे डिपार्टमेंट की, वो कहते हैं ना, नाक का सवाल होता है। ठीक है, लेकिन बाद में सर्च के बाद तो आप डिपार्टमेंट जा सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप समझते हैं सर। द रेडिड पर्सन में आल्सो डिक्लाइन और ऑब्जेक्ट टू द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट एट ए लेटर आवर ऑफ द नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन हेल्थ ग्राउंड और ग्राउंड ऑफ मेंटल फिजिकल। ये सारी चीजें आप उसमें देख लेना सर। ठीक है सर। अब नेक्स्ट कीजिए सर, क्योंकि टाइम हमारे पास काफी कम है। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम द सर्च इज कंडक्टेड टू अलाउ अथॉरिटीज। ये भी सर, ये सारी चीजें हैं कि आपको उनको एंटर करने देना है, वो आपकी बुक्स को वो कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने आपसे डिस्कशन की हैं वही आपकी ड्यूटीज हैं, क्योंकि काफी सारा अभी इसमें पेंडिंग है। वेदर डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑथराइजेशन विल बी डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च और द डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड कंडक्टिंग ऑफ इनिशियल सर्च इन दी प्रीमाइसेस ऑफ एसएससी। देखिए जो जब आप अथोराइजेशन लेते हैं और जो सर्च कंडक्ट करने के लिए आप मटेरियल इकट्ठा करते हैं, वो और वो डेट अलग हो सकती है। लेकिन जब अथोराइजेशन के लिए जो डेट डाली है, सपोज करो अथोराइज किया है कि आज 9 मई 2026 को आपने सर्च करनी है, तो वो 9 मई 2026 को ही करेंगे।
उसको चेंज नहीं कर सकते। पावर्स ऑफ ऑथोराइज्ड ऑफिसर कंडक्टिंग सर्च एंड सीजर्स, देखिए उनके पास सारी पावर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। सर ने बताया जो पावर नहीं है वो लोग वो भी करते हैं। लाइटर मोड में बोल रहा हूं सर मैं ये। नेक्स्ट कीजिए सर। वेदर स्टेटमेंट टेकन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्च हैज एनी एविडेंशियल वैल्यू। देखिए स्टेटमेंट टेकिंग ड्यूरिंग कोर्स ऑफ सर्च इज ओनली कवर्ड अंडर सेक्शन 132(4). एविडेंशियल वैल्यू है बट कुछ कंडीशंस में नहीं है। एक दो केस ला मैंने उसके रिगार्डिंग दिए हैं, वो आप देखिएगा सर, ठीक है सर। वेदर स्टेटमेंट गिवन इन कोर्ट, सर 17 नंबर पेज पे ही हूँ अभी, 17 नंबर पेज पे ही, हितेश जी 17 पे। वेदर स्टेटमेंट गिवन इन कोर्स ऑफ सर्च कैन बी रिट्रैक्टेड इफ नेसेसरी। देखिए अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि सर्च के अंदर, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, और नीचे आओ, और नीचे आओ, और नीचे आ जाओ, और आ जाओ, और आइए सर। वेदर, हाँ ये, हाँ पावर से नीचे आ जाइए। एक्चुअली मोबाइल में ना काफी छोटा दिखता है, और थोड़ा नीचे आइए सर। इस पे आ जाइए, वेदर स्टेटमेंट गिवन, हाँ बस बस बस। वेदर स्टेटमेंट गिवन इन कोर्स ऑफ सर्च कैन बी रिट्रेटेड। यस, जो सर्च के अंदर आपको प्रेशराइज है या कुछ भी जो होता है, बाद में आप उसको रिट्रेट कर सकते हैं, रिट्रैक्टेड कर सकते हैं, ठीक है सर। डिपार्टमेंट में जाकर के एप्लीकेशन देंगे, बट रिट्रैक्शन जो है ना, जितना जल्दी करेंगे उतना बढ़िया होगा। उसके लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि क्यों आप रिट्रैक्ट कर रहे हैं इन चीजों को। नेक्स्ट है वेदर इन कोर्स ऑफ सर्च ए स्टेटमेंट इज स्टिल रिकॉर्डेड फॉर कन्फेशन ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम डिस्पाइट सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन डेटेड 10/3/2003। विनय सर, जो मैं आपको बता रहा था कि सीबीडीटी की गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन आई हुई है, जो ये 10/3/2003 में है। थोड़ा सा नीचे करो सर, हितेश जी नीचे करो थोड़ा। हाँ ये विनय सर, ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें बोला गया है कि एसएससी को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते उसके लिए, सरेंडर अमाउंट करने के लिए, ठीक है सर। नेक्स्ट है वेदर स्टेटमेंट गिवन इन कोर्स ऑफ सर्च इज रिट्रैक्टेड बाय द एसएससी वेदर इट हैज द सेम फोर्स। यस, जो रिट्रैक्शन आपने किया है, स्टेटमेंट आप चेंज कर रहे हैं, जो आपकी प्रीमाइसिस पे हुआ था उसका भी सेम वैल्यू बनती है, बट वो आपके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि आप उसको क्यों कर रहे हो, आप रिट्रैक्शन क्यों डाल रहे हो। इसके अंदर भी मैंने कुछ केस लॉज वगैरह दिए हैं सर। नेक्स्ट है डिसीजन वेयर रिट्रैक्शन ऑफ स्टेटमेंट वाज वैलिड। ये एक केस लॉ दिया है सर। आप पेज नंबर, हितेश जी पेज नंबर 18 पे आइए सर। अब फॉर हाउ लॉन्ग द बुक्स ऑफ अकाउंट सीज्ड। देखिए पहले 1/4 ये अभी आज की डेट में, पहले था कि 30 दिन तक आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट वो सीज कर सकते हैं, बट विद द परमिशन ऑफ द हायर अथॉरिटी वो उसको एक्सटेंड कर लेते हैं, और वो अलाउबल भी है। आज की डेट में जो ये डाला गया है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सर्च, सॉरी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, पहले 30 दिन था कि कंप्लीशन आपकी असेसमेंट हो जाती है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए जाएंगे। बट अब उसमें कुछ अमेंडमेंट डाली है इन्होंने कि आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर ऑफ द असेसमेंट, उसके क्वार्टर का जो एंड है उसके 30 दिन के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स आपके वापस हो जाएंगे। नेक्स्ट है वेदर ऑन इंफॉर्मेशन टू पुलिस ऑफिसर। देखिए अगर सपोज करिए कि कोई गाड़ी जा रही है, उसके अंदर कुछ कैश पड़ा हुआ है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, और पुलिस वाला उसको देखता है और उसको रोकता है और डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है कि देखिए इसके 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 गाड़ी में इतना 20 लाख 25 लाख अमाउंट पड़ा हुआ है, तो इन दैट केस क्या डिपार्टमेंट सर्च कंडक्ट कर सकता है? तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो डिपार्टमेंट सर्च कर सकता है। अगर डिपार्टमेंट को ये लग रहा है कि ये अनडिस्क्लोज्ड कैश है इसके इसके इस एसएससी के पास, तो इन दैट केस वो उसकी 132A में वो सर्च कर लेता है। बाद में कई बार देखा गया है वो सर्च इनवैलिड भी हो गई है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर कर दिया उसको कि भाई ये फलाना पैसा मैंने ऑलरेडी बुक्स के अंदर दिखा रखा था, ये मेरे सेल का पार्ट है। इन दैट केसेस
132A की जो सर्च की प्रोसीडिंग्स है वो इनवैलिड हो जाती है। एक केस जो पीछे 69A का जो वो आया था, मैं वो उस समय क्लियर नहीं कर पाया, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। सपोज करिए कि मेरे यहाँ पे मैंने मेरी गाड़ी से 2 करोड़ रुपया मिला एसएससी के यहाँ से गाड़ी से। डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई इसकी एक गाड़ी से 2 करोड़ रुपया मिला है। डिपार्टमेंट ने मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी, मेरे यहाँ पे सर्च करी। डिपार्टमेंट ने मेरी सर्च में पूछा कि 2 करोड़ रुपए कहाँ से आया। मैंने कहा जी इस पार्टी को मैंने एक गुड्स सेल किया था और उसने मेरे अकाउंट में पैसे डलवाए या मुझे कैश प्रोवाइड करा, उसका पैसा है। तो डिपार्टमेंट उसके यहाँ पे भी सर्च कर देता है और वहां पे उसको मिलता है कि उसने एक्चुअल में उनको इतनी अमाउंट की पेमेंट कर रखी थी। इन दैट केस वो जो सर्च है वो इनवैलिड हो जाएगी। नेक्स्ट है, कैन द ज्वेलरी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स और स्पाउस और रिसीव्ड एज ए गिफ्ट इन मैरिज बी सीज्ड। देखिए अगर आप उसको पूरा का पूरा आपको ये प्रूव करना होगा कि सारी की सारी ज्वेलरी मेरी अनडिस्क्लोज इनकम की नहीं है, मैंने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर रखी है, मेरे पेरेंट्स की मुझे ड्यूरिंग मैरिज या आफ्टर मैरिज जो भी है मुझे यह गिफ्ट में मिली है, वो सारा आपको प्रूव करना होता है। गवर्नमेंट ने एक सीबीडीटी की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग लेडीज को 500 ग्राम, अनमैरिड को 250 ग्राम्स और जेंट्स को 100 ग्राम तक अलाउड किया है। बट ये नहीं है कि डिपार्टमेंट इसको सीज नहीं कर सकता, आपको कुछ कंडीशंस के अंदर उसको भी प्रूव करना पड़ेगा। ये मैंने पीपीटी के अंदर डाल भी रखा है। हाउ टू हैंडल सर्च एंड सीजर एडमिशन एंड रिट्रैक्शन, वो मैंने आपसे अभी डिस्कशन सारे कर दिए हैं कि रिट्रैक्शन कौन से सेक्शन 132(8) में रिट्रैक्शन होगी। ये सारी चीजें मैंने अभी वर्बली आपसे डिस्कशन हुई है, पीपीटी के अंदर आपको इजीली मिल जाएंगी। What should the SSC do for obtaining the copies of abstract or record seized? जो आपका सर आप पेज नंबर 18 में आइए लास्ट में। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो सीज किए गए हैं अगर एसएससी उनको लेना चाहता है तो डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करेगा और वो डिपार्टमेंट आपको उसकी कॉपी प्रोवाइड करा देगा। Whether a third party or an employee or an ex-employee can inspect or obtain the copies of the seized records? No. थर्ड पार्टी को आपके डॉक्यूमेंट्स जब तक आप उनको ऑथराइज नहीं करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते। Whether it is essential for the department to allow inspection on the request of the SSCS? SSC की रिक्वेस्ट पे आपको अलाउ किया जा सकता है। What happened in case of authorized officer seized any books of account, other document, any money, bullion, jewelry or other valuable article etc. over the which he has no jurisdiction? अगर किसी केस में सपोज कीजिए मेरे यहाँ पे प्रोमाइसिस मेरा दिल्ली में है, मेरे यहाँ पे सर्च हुई और उनको पता चला कि इनका बिजनेस या ऑफिस बॉम्बे में भी है, वहां पे सर्च के लिए अथोराइजेशन वहां का जो चीफ कमिश्नर है उससे परमिशन लेकर के अथोराइजेशन डिपार्टमेंट ले सकता है और उसके अथोराइजेशन के बाद वो उनकी उसको सीज कर सकता है। रिस्ट्रेंट प्रोबेशनरी ऑर्डर, जो रिस्ट्रेंट करने का है कि अगर डिपार्टमेंट को लग रहा है कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनको, पेज नंबर 19 पे भैया, डिपार्टमेंट को लग रहा है कि ये जो स्टॉक है या कुछ भी आइटम्स है वो उनको डिपार्टमेंट लेकर नहीं जा सकता, उनको डिपार्टमेंट रिस्ट्रेन कर सकता है। उनको उसको बोलते हैं पीओ 132(3) सेक्शन के अंदर। सपोज करो किसी के पास घोड़े हैं, घोड़ों को थोड़ा डिपार्टमेंट लेकर जाएगा क्योंकि उनको खाना पिलाना ये सारी चीजें हैं। किसी के पास भी कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिनको डिपार्टमेंट कैरी नहीं कर सकता तो उन केस में रिस्ट्रेंट ऑर्डर लगा सकता है कि डिपार्टमेंट की परमिशन के बगैर आप इनको सेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट 20, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 132(4). देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि आपका बेसिक चीजें, आपके नाम, एड्रेस, सारी चीजें, फैमिली की फैमिली ट्री, फैमिली हिस्ट्री आपके वो उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जो आपके पास कैश है या ज्वेलरी है वो किसकी है, कहाँ से आया, उसका सोर्स क्या है, आपके पास अनरिकॉर्डेड इनकम है, तो ये सारी चीजें आपसे स्टेटमेंट के अंदर पूछी जाएंगी। ये आप इसमें से पढ़ सकते हैं पीपीटी में से। प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट भी मैंने आपको बता दिया है कि आपके राइट्स क्या क्या हैं। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें इसी में पेज नंबर 20 में लिखना भैया, पर्सन हुज स्टेटमेंट कैन बी रिकॉर्डेड। जितने भी फैमिली के मेंबर हैं सभी की आपकी रिकॉर्ड कर सकता है। कोई आपके डायरेक्टर हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं या ब्रोकर्स हैं, सभी की स्टेटमेंट डिपार्टमेंट के पास पावर है उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की, बट उनके पास सफिशिएंट कोच होना चाहिए उसके लिए। एग्जामिनेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, एट द बिगिनिंग ऑफ सर्च फॉर बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे डिपार्टमेंट लेता है,
ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूं। सर पेज नंबर आइए आप 21 पे। ये सेक्शन वाइज मैंने आपको बताया है, विदाउट सेक्शन, ये सेक्शन वाइज लिखा हुआ है। सेक्शन 139 बी में, 139 डी में पावर है प्रोविजनल अटैचमेंट करने की। देखिए एक बात और मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था कि कई बार क्या होता है, कोई ज्वेलरी है, मैंने बताया कि ज्वेलरी 15 लाख रुपए की है या ये प्रॉपर्टी 25 लाख रुपए की है। इन दैट कंडीशन डिपार्टमेंट वैल्यूएशन, जो डिपार्टमेंट का अथोराइज वैल्यूएशन ऑफिसर है, उसको बुला करके आपकी प्रॉपर्टी की या आपकी ज्वेलरी की वैल्यूएशन करा सकता है। ठीक है, ये मेरा सर्च का था। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम भी काफी स्पीड से जा रहा है। सर्वे अंडर सेक्शन 133A, वैसे तो मैंने आपसे डिस्कशन किया है कि सर्वे में एक्शन काफी कम होता है एज कंपेयर टू सर्च। पेज नंबर 23 करना भैया। हु कैन कंडक्ट सर्च जैसे सर्च, सॉरी सर्वे। सर्च में मैंने बताया था प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से परमिशन लेने की जरूरत है। बट इन केस ऑफ सर्च सर्वे यू कैन टेक द परमिशन फ्रॉम द ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर। नेक्स्ट, कि सर्वे कौन कर सकता है, उसके जुडिक्शन क्या है। जो भी आपका जुडिक्शनल, जुडिक्शन के अंदर देखिए पहले क्या था, पहले सर्च आपका जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर कर सकता था, जहां पे आपकी जुडिक्शन है। सपोज करो मेरा पैन वार्ड 47 में पड़ा हुआ है, तो जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर मेरा वार्ड 47 हुआ, तो वो मेरे यहाँ पे सर्च कर सकता था। अदर देन जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर मेरे यहाँ पे, सॉरी सर्च नहीं, सर्वे, मेरे यहाँ पे सर्वे नहीं कर सकता था। बट डिपार्टमेंट ने इसमें एक्ट के अंदर चेंज किया, अब सारी पावर्स जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उन्हीं को प्रोवाइड कर दी है, वही सर्वे करते हैं। नेक्स्ट करना। देखिए एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ सर्वे, क्या क्या कर सकते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट कर सकते हैं आपके, अवेलेबल एट सच प्लेस, प्लेस और वेरीफाई द कैश बुक स्टॉक वैल्यूएबल और थिंग फाउंड देयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। वो आपकी बुक्स वगैरह तक ये, या लैपटॉप कंप्यूटर, ये सब चीजें की वेरीफाई कर सकते हैं। बट आपके बिजनेस प्रेमाइसिस पे ही कर सकते हैं और बिजनेस आवर पे ही करेंगे। नेक्स्ट करना, रिस्ट्रिक्शन डाली हुई है इसमें आपको। नेक्स्ट करना भैया पेज नंबर 27। नेक्स्ट कर लो 28। देखिए जो सर्च के अंदर जो हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है उसकी एविडेंसरी वैल्यू होती है, बट इन द केस ऑफ सर्वे उसकी एविडेंसरी वैल्यू नहीं होती। ज्यादा नहीं होती तो है, बट ऐसा नहीं है कि एज कंपेयर उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। कुछ उसकी कंडीशंस है, वो मैंने अपनी पीपीटी के अंदर डाल दी हैं, आप उससे देख सकते हैं सर। ये कुछ केस लॉ भी मैंने डाले हैं पेज नंबर 32 पे। आप भैया आप आइए पेज नंबर 34 पे आइए सर। आप लोगों को काफी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मोबाइल से ही वेबिनार करना पड़ रहा है। वेदर इज सर्वे कैन बी कन्वर्टेड इनटू सर्च, यस। कुछ कंडीशंस होती हैं, जब डिपार्टमेंट को लगता है कि ये खाली प्रीमाइसिस पे नहीं, उनको काफी और एरिया पे जा करके इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उन केसेस में आप डिपार्टमेंट सर्वे को सर्च में कन्वर्ट कर सकता है। पेज नंबर 35। अभी सर्च और सर्वे को मैंने काफी हद तक कंप्लीट करने की कोशिश की है। अब मैं आ जाता हूं असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पे। देखिए जो सर्च हो जाती है हमारी, सर्च के बाद क्या होता है, हमारी स्टेटमेंट डिपार्टमेंट के पास होती है, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सीज डॉक्यूमेंट्स, स्टॉक की वैल्यू, वो सारी चीजें डिपार्टमेंट होने के बाद अब डिपार्टमेंट उसमें एक अप्रेजल रिपोर्ट तैयार करता है। पहले उसमें कुछ कंडीशंस थी कि इतने टाइम के अंदर, 60 डेज के अंदर डिपार्टमेंट को अप्रेजल रिपोर्ट प्रोवाइड करनी थी सेंट्रलाइज यूनिट को, जहां पर हमारी असेसमेंट कंप्लीशन होनी है। बट उसमें बाद में अमेंडमेंट आया। अब आज की डेट में अमेंडमेंट ये है कि कब तक हमारी सर्च कंप्लीट होने के बाद हमारी असेसमेंट और ये सारी प्रोसीडिंग्स कंप्लीशन में कितना टाइम है।
अब इसमें एक्ट के अंदर अमेंडमेंट ये आई है कि 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सर्च वाज कंप्लीटेड। सपोज करिए मेरे यहाँ पे सर्च हुई और वो मार्च में कंप्लीट हुई है मेरी सर्च, तो मार्च से 12 महीने यानी कि अगले मार्च 2027 तक मेरी सर्च का जो मेरी असेसमेंट है वो कंप्लीट करनी होगी। पहले 18 महीने था, उससे पहले 24 महीने था, बट डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है ताकि, क्योंकि देखो डिपार्टमेंट के पास जितनी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, उसमें बार बार आपको बुला करके आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता रहता है डिपार्टमेंट। तो आपकी जो वायलेशन है आपके आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आर्टिकल्स के अंदर दिया है वो तभी कम होगा अगर डिपार्टमेंट मेरी एज ए प्रोफेशनल, मैं ये चाहता हूं कि इस पीरियड को जितना कम किया जाए उतना ठीक है। तो पहले बिफोर 1 सितंबर 2024 जो असेसमेंट होती थी वो, सॉरी 1 अप्रैल 2021 से भी पहले जो असेसमेंट होती थी 153A 153C एंड 153D में होती थी, जो कि 6 इयर्स एंड 10 इयर्स थे। ये 2000 आई थिंक 3 से स्टार्ट था और अप टू 31 मार्च 2021 तक करीबन 17-18 साल जो सर्च का जो असेसमेंट थी 153A एंड 153C में हुई। 153A उनके यहाँ पे होता है जिनके यहाँ पे मेन सर्च हुई है, उसकी जो असेसमेंट है 153A में होगी। और जिनकी अदर पार्टीज हैं, मान लो मेरे यहाँ पे सर्च हुई है, किसी के डॉक्यूमेंट्स मिले, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स मिले उनके बेस पे जो असेसमेंट होनी है वो सेक्शन 153C में थी और बाकी जो बच गए 153D में थी। अभी टाइम कम की वजह से, क्योंकि अभी 153A एंड 153C के केसेस हमारे पास बहुत ही कम बचे हुए हैं, तो इस पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आया न्यू रिजीम। नेक्स्ट करना भैया। यस, 1 अप्रैल 2021 FM मैडम को लगा कि भाई SSC काफी परेशान है, 6 साल 10-10 साल के केस खुल रहे हैं, उसके बाद फिर 148 हो जाता है। तो डिपार्टमेंट ने क्या, FM मैडम का एक स्पीच था उसके अंदर बोला कि जो असेसमेंट 6 साल 10 साल थी उसको कम करके 3 साल, पहले तो 3 साल और 10 साल किया, फिर बाद में उसको 3 साल और 5 साल किया। उसकी कंडीशन ये डाली कि 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच द रिटर्न वाज फाइल्ड, कि जिस साल में आपकी रिटर्न फाइल हुई है उससे 3 साल तक आपकी असेसमेंट हो सकती है अगर आपकी अनडिस्क्लोज इनकम 50 लाख से कम है। अगर 50 लाख से ज्यादा है तो 5 years के केस आपके रीओपन हो सकते थे। उसमें आपको कुछ कंडीशन दी थी सेक्शन 148A B C D कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है आपको 148B का एक नोटिस इशू किया जाएगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, 148D का ऑर्डर पास किया जाएगा, अगर सेटिस्फाइड डिपार्टमेंट नहीं है तो 148 का प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। बट इसमें भी फिर कुछ चेंज किया इन लोगों ने कि इन द केस ऑफ सर्च या सर्वे के केस में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, डायरेक्ट 148 का नोटिस इशू किया जाएगा। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी एक वेबिनार हो चुका है हमारा। सर नेक्स्ट करना। अब आ जाइए सेक्शन 158B टू 158BG। देखिए 1 सितंबर 2024 के बाद जिसके यहाँ पे भी सर्च हुई है उस पे उसकी उनकी असेसमेंट इन सेक्शंस के अंदर होगी 158BB एंड 158BB 158BG तक, जिसमें कहा गया कि अंडर द न्यू रिजीम द फोकस इज स्पेसिफिकली ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिडक्टेड। भैया कर दिया ना आपने, पेज नंबर 37 पे है ना। ड्यूरिंग द सर्च द ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू लॉ इज टू मेक सर्च असेसमेंट मोर एविडेंस बेस्ड फास्टर एंड फोकस्ड रादर देन रीओपनिंग ऑल कंप्लीटेड असेसमेंट। कि इसमें ये किया गया कि आपको नोटिस 158 इसमें इशू किया जाएगा, वो भी आगे हमने डाल रखा है। ये आप सारा मैं पीपीटी में दे दूंगा जब आपको पीपीटी मिलेगी, और एक दो केस ला और प्रॉपर में इसका आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब पोस्ट सर्च हमारा जो चार्टेड अकाउंटेंट है उनका या एडवोकेट या प्रोफेशनल्स का क्या रोल होता है, थोड़ा सा मैंने उसको भी हाईलाइट किया है। अंडरस्टैंडिंग सर्च डॉक्यूमेंट। देखिए जब भी कोई सर्च होती है किसी के यहाँ पे भी, मेरी पर्सनल राय ये है कि किसी भी प्रोफेशनल्स को, चाहे एडवोकेट हो या चार्टेड अकाउंटेंट हो या कोई भी और हो, उसको वहां पे नहीं जाना चाहिए सर्च के टाइम पे। क्योंकि देखिए एसएससी कई बार कुछ ये बोलता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स सीए साहब के पास हैं या एडवोकेट साहब के पास हैं या उस प्रोफेशनल के पास हैं, तो इन दैट कंडीशन अगर आप भी वहां पहुंच जाएंगे, हालांकि डिपार्टमेंट आपको अलाउ ही नहीं करता
किसी को प्रीमाइसेस के अंदर एंट्री करने के लिए जहां पे सर्च हो रही है, बट आपको किसी भी कंडीशन में वहां पे जाना नहीं चाहिए। बट आजकल डिपार्टमेंट का देखिए, फॉर सेफ चार्टेड अकाउंटेंट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, जब एसएससी के यहाँ पे सर्च होती है तो आजकल वो चार्टेड अकाउंटेंट को भी उसमें कवर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सारा का सारा बारूद कहाँ पड़ा हुआ है, चार्टेड अकाउंटेंट के ऑफिस में पड़ा हुआ है। जितनी बैलेंस शीट है वहां कहाँ पड़ी है, वहीं पड़ी हुई है। सारे डॉक्यूमेंट्स उनको ये लगता है कि डिपार्टमेंट को, कि चार्टेड अकाउंटेंट के पास है। एसएससी चाहे अपने आप खुद कितना ही कुछ कर रहा है, बट जब ये बोल देता है एसएससी, तो ये बोलता है कि सर सीए साहब को पता है, उन्होंने बोला था, या फलाना साहब ने बोला है, उन्होंने किया था। तो डिपार्टमेंट आजकल सर्च एसएससी के साथ साथ प्रोफेशनल्स के यहाँ भी कर रहा है। तो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने प्रॉपर हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना या न्यू हार्ड डिस्क यूज करना, वो सारे आप लोग समझदार हैं, वो करते रहना चाहिए। प्रिपेयरिंग सर्च समरी, कि एक सर्च की समरी बनाई जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एसएससी के डिपार्टमेंट लेकर गया है, वो सारे हमें बनाने चाहिए। एडवाइस करना चाहिए एसएससी को, क्योंकि एसएससी को इतना घबरा जाता है, इतना टेंस हो जाता है कि वो स्टेटमेंट भी कई बार गलत कर रखी है। अगर उसको ये लग रहा है कि स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट कराना चाहिए, तो रिट्रैक्ट के लिए उसको गाइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 132(4), रिट्रैक्शन और क्लैरिफिकेशन। उसके लिए अगर उसको लग रहा है आपको, तो उसको रिट्रैक्शन कराना चाहिए। रिकंसिलेशन ऑफ सीज्ड मटेरियल, देखिए डिपार्टमेंट जो आपका मटेरियल सीज करके ले गया है, आपको पता भी नहीं है कि आपने जो डायरी दी उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। वो तो जब आपको बुलाएगा डिपार्टमेंट, आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, तब आपको पता चलता है, अरे मैंने तो ये भी लिखा हुआ है, अरे इसमें तो मैंने ये भी लिखा हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपना जो फालतू की चीजें हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, उनको हटाइए। सारी चीजें अननेसेसरी की कूड़ा करकट 10-10 साल पुरानी हमारे पास पर्ची पड़ी हुई है, जिनका कोई जरूरत भी नहीं है, वो सारी चीजें हमें एक बार साफ करनी चाहिए। ये जो हम प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं कैश में, वो सारी चीजें सर्च के लिए या बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। हैंडलिंग असेसमेंट नोटिस, जो नोटिस डिपार्टमेंट के आते हैं, 153A का तो नहीं है, जो 158 के जो या 148 के नोटिस आते हैं, वो हमें प्रॉपर हैंडल करने चाहिए। अब जो नया सेक्शन 158 आया है, उसके अंदर जो टाइमिंग दी है, विद इन 60 डेज यू हैव टू फाइल योर रिटर्न। आफ्टर अगर आप 60 डेज के बाद रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपके रिटर्न इनवैलिड ट्रीट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन बिफोर अथॉरिटीज, आपको जो अथॉरिटीज हैं, जो आपको समन इशू किया है एसएससी को, आप एसएससी के साथ जा सकते हैं, या उनको कैसे गाइड करना है, वो सारा काम आप लोगों ने करना है। तो अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। हितेश जी, हाँ जी सर। कोई चैट बॉक्स में एक बार आप देख लीजिए, कोई क्वेश्चंस है? कोई चैट क्वेश्चन है बॉक्स सर आप लोगों में के, तो आप कुछ मुझसे नहीं डायरेक्ट है कर सकते हैं। फिलहाल। सर ज्वेलरी का मतलब, ज्वेलरी है, गोल्ड बार्स तो नहीं है? क्या बोल रहे हैं सर, ज्वेलरी? ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी ज्वेलरी है मतलब वो पहनने वाली हो, जैसे गोल्ड बार्स वगैरह होती हैं, जी तो नहीं गोल्ड सर, बार्स देखो को तो। देखो, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए सपोज करो आपके पास कोई ज्वेलरी है, मेरी वाइफ ने मेरी वाइफ के पास 300 ग्राम ज्वेलरी है, बट मेरा सोर्स कुछ भी नहीं है मेरे पास। कई लोगों के पास, जो डिपार्टमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है, 500 ग्राम अलाउड है लेडी को, या जो अनमैरिड है उसको 250 ग्राम तक अलाउड है। तो बट उसमें भी डिपार्टमेंट आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि भी ये 300 ग्राम भी कहाँ से आई आपके पास। देखो मेरा प्रोफाइल अगर हाई है, मैं आईटीआर 1 करोड़ रुपए की फाइल करता हूं, तो मैं 500 क्या 1 kg तक भी मुझे अलाउड है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट कुछ कंडीशंस में अगर मेरी 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 जो आईटीआर है या मेरा जो डाटा है, वो मुझे अलाउ ही नहीं करता कि मैं 300 ग्राम्स तक भी वो ले सकता हूँ। सपोज करो मैं बोलता हूँ कि मुझे ड्यूरिंग, या मेरे को मेरे मैरिज में ये डॉक्यूमेंट्स या ये सॉरी ज्वेलरी या कुछ मेरे को गिफ्ट मिला था, तो वो भी मुझे प्रूव करना पड़ेगा बाद में कि ये प्रॉपर्टी, ये जो ज्वेलरी है, मुझे मेरे रिलेटिव्स ने दी थी। उनकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक की जाती है। समझ गया सर। आपका सब कोई कुछ और भी बहुत क्वेश्चंस कॉन्टेक्ट हैं? करें। जी जी। मतलब मुद्दे मेरा की बात मोबाइल यह है नंबर, कि अच्छी, मुद्दे की बात यह है कि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न अच्छी भरो। बिल्कुल सर बिल्कुल।
अच्छी रिटर्न फाइल करनी चाहिए हमें प्रॉपर। सबसे मेन बात सर क्या है कि हमें किसी चीज को भी कैजुअली नहीं लेना चाहिए। जो मोबाइल के अंदर इतना डाटा, इतना बारूद भरा हुआ है हम लोगों ने, कि मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज कर दिया ये है, वो हम कैजुअली वे में तो कर देते हैं, बट वो बाद में कुछ ना कहीं इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है। सपोज करो मेरी वाइफ ने कहा कि जी मेरे हस्बैंड ने तो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, बट वो प्रॉपर्टी कैसे खरीदी है वो तो मुझे पता है कैसे खरीदी गई है प्रॉपर्टी। उसमें 3 करोड़ रुपए तो मेरे वाइट के गए हैं, बाकी 2 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए मैंने जो कैश दिया है, वो तो 4 जगह 10 जगह आदमी अपनी वो तो करता ही है कि मैंने तो इतनी। जब वाइफ की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है, उसने उससे पूछा कि आपके हस्बैंड के नाम कोई प्रॉपर्टी है, हाँ जी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? अभी अभी ली है उन्होंने 6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। तो वो तो बता दी, क्योंकि आपने तो उसको बताया नहीं ये चीजें कि 3 करोड़ 5 करोड़ कितना वाइट का है, ये बताना नहीं बताना, बट वो तो बता देगी। तो ये सारी चीजें कई बार हम अपनी फैमिली के में हम देखो, हम प्रोफेशनली कई बार गाइड कर देते हैं कि आप अपनी वाइफ के नाम सैलरी ले लो, अपने बेटे के नाम ले लो, आप अपने बेटे को किसी फर्म में डायरेक्टर बना लो, कंपनी में डायरेक्टर बना लो। बट उनको पता ही नहीं कि हमारी कोई सैलरी भी आ रही है, हम किसी फर्म में या कंपनी में डायरेक्टर भी हैं या पार्टनर भी हैं। तो ये सारी चीजें हमें डिक्लेयर करनी चाहिए, अपने बच्चों को बतानी चाहिए किसी के नाम से क्या कर रहे हैं। हम वाइफ के नाम का चेक भी खुद क्लियर करा लेते हैं। तो कुछ चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए अब जो डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर्स है ना सर, वो 30 साल 35 साल से ज्यादा के ऑफिसर्स नहीं है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। वो 3 दिन मैं 4 दिन तक समझता हूँ। पूरी नाइट जाग सकते हैं, पूरे दिन जाग सकते हैं। और वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप हम सोच नहीं सकते उन चीजों के लिए। तो मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि अपना प्रॉपर डाटा मेंटेन कीजिए। सर अभी मुझे साइबर क्राइम पुलिस वालों ने फोन के जी अंदर एक ऐसी ऐप, मतलब एक गूगल के अंदर या सिस्टम में एक ऐसी जगह दिखाई जिसके अंदर मैं फोन को बंद भी करके बैठा हूं तो भी मेरा जी फोन मेरी आवाज सुन रहा होता है। सर। सर मैं अभी क्योंकि वेबिनार है बता नहीं सकता कि आपका जो प्रोफाइल है वो डिपार्टमेंट के पास भी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। वो वो जैसे आपको याद होगा पुराने टाइम के अंदर जब केबल नई नई आई थी, तो उसमें बीच में एक वो लगा लेते थे और उसके थ्रू ही बगैर तार को कनेक्ट किए ही उससे कनेक्शन टीवी के अंदर वो दिख जाता था। ऐसे ही हाँ, डिपार्टमेंट के पास बहुत सॉफ्टवेयर्स हैं। समझ गए। ठीक बात है, ठीक बात। कोई और भी क्वेश्चन है सर? मेरा मोबाइल नंबर है 9899504368 और मेरी मेल भी दी गई है पीपीटी में भी, wats579@gmail.com। कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है सर्च से रिलेटेड या असेसमेंट प्रोसीडिंग से रिलेटेड, सर फेसलेस फोन नंबर फिर सीआईडी से बता लाइसेंस। देंगे सर? पार्डन सर? फोन नंबर। 98 हाँ जी। डबल नाइन यस सर। 50 यस सर। 4368। ओके सर। क्योंकि कुछ चीजें स्पीडली बोली गई हैं, तो आप कुछ भी अगर आपसे डिस्कशन करना है तो आप कर सकते हैं सर। थैंक ठीक यू है वेरी सर। मच। थैंक यू सर थैंक यू फॉर सर। लिसनिंग। Thank Any थैंक यू मैम। Thank you everyone for your valuable participation. We hope today's session added practical insights and clarity on income tax issues. Thank you.